یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ محمد صادق سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سرکار کسانوں کو با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ امدادی باہمی کے سیکٹر کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں، مرکزی وزیر امت شاہ۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی مہانومی کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کشمیری پنڈتوں کی وادی میں مستقل بحالی کے لیے تندہی اور لگن سے کر رہی ہے کام، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ اور آپریشن اجے کے تحت اسرائیل سے بھارتی باشندوں کو لے کر چھٹی پرواز پہنچی نئی دلی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں 2027 سے قبل نامیاتی کھیتی میں 2 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے کسانوں نے اب نامیاتی کھیتی کا رخ کیا ہے اور حکومت اس بات کو یقینی بنانے پر کام کر رہی ہے کہ انہیں نامیاتی مصنوعات کا فائدہ حاصل ہو۔ وزیر موصوف نے یہ بات نئی دلی میں نیشنل کوآپریٹو فار ایکسپورٹس لمیٹڈ NCEL کا لوگو، ویب سائٹ اور بروشر جاری کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نامیاتی کھیتی کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکز کا مقصد ملک کے امداد باہمی کے سیکٹر کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ زرعی برآمدات میں اضافہ اور کسانوں کو با اختیار بنانا حکومت کے مقاصد میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کوآپریٹو ایکسپورٹ لمیٹڈ برآمدات سے متعلق مواقع کے ساتھ کوآپریٹیوز میں سہولت پیدا کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے اور اس سے کسانوں، کوآپریٹیوز اور عالمی منڈی کے مابین رابطے تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔ آج مہا نومی ہے، جسے درگا نومی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ نوراتری کے نوروزہ مبارک تہوار کے اختتام کی علامت ہے۔ یہ دن ماں سدھی دتری کی پوجا کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ درگا ماں نے تہوار کے 9ویں دن مہیشا سور پر اپنا آخری وار کیا اور اگلی صبح یعنی وجے دشمی کے دن اسے شکست دی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے مندروں میں شردھالوؤں کا بھاری رش دیکھا گیا، جبکہ 9 دن پر محیط نوراترا کے دوران بھی مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا ہوتی رہی۔ مہانومی کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے شردھالو کٹرا میں واقع ماتا ویشنو دیوی استھاپن پہنچ رہے ہیں، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حکام اور شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی طرف سے آنے والے یاتریوں کی سہولت کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی دوران جموں کشمیر میں عالمی امن، ہم آہنگی، خوشحالی اور انسانیت کی صحت کے لیے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے زیر اہتمام 9 روزہ شٹ چندی مہا یگیہ آج مہانومی کے موقع پر اختتام پذیر ہوا۔ یاتریوں کے علاوہ شرائن بورڈ کے افسران اور عملے نے اس موقع پر ویدک منتروں کے درمیان انجام دی جانے والی پورن آہوتی اور دیگر مذہبی تقریبات میں حصہ لیا اور پدم شری پروفیسر وشوامورتی شاستری کی قیادت میں پنڈتوں کے ایک گروپ نے مہا یگیہ کو انجام دیا۔ ادھر اننت ناگ کے مٹن علاقے میں واقع مارٹنڈ مندر میں مہانومی کے موقع پر کافی تعداد میں شردھالوؤں نے اپنی حاضری یقینی بنائی۔ آج صبح سے ہی شردھالو پوجا پاٹ میں محو رہے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے یہاں آنے والے شردھالوؤں کا والہانہ استقبال کیا، جو جموں کشمیر کی پرانی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی روایت رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے تصدق رشید کی یہ خصوصی رپورٹ۔ مہانومی کا پروگرام بالکل مارٹن مندر میں اس وقت بھی روا دوا ہے، جہاں ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی پوجا اور آرتی کا سلسلہ جاری رہا۔ آج صبح سے ہی مارٹن مندر کو سجایا گیا تھا۔ مارٹن تیرتھ ٹرسٹ کے ہمارے ساتھ پردھان ہے اشوک جی سدھا، ان کے جنرل سیکرٹری مسٹر ٹکو صاحب۔ سر کیا کہیں گے؟ آج ہمارا مہانومی کا پروگرام ہے، یہ ہر سال آتا ہے۔ پہلے درگا اشٹمی کل تھی، آج مہانومی ہے۔ یہ ماتا جو ہماری درگا ماتا ہے، انہوں نے 9 روپ دھارن کیے تھے، جو آج اسی خوشی میں ہم پھر ان کا پاٹ کرتے ہیں، پوجا پاٹ رات سے ہی یہاں پر ہون ہوتا ہے۔ کہاں سے لوگ آئے تھے سر آج؟ آج تو یہاں لوگ ہر گاؤں سے آتے ہیں، جہاں بھی ہمارے کشمیری پنڈت ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ 2-3 سال سے ہم نے ماتا درگا کا بھی اب شروع کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ماتا درگا کا مندر جو ہے وہ یہاں سے 2.5 کلومیٹر دور پہاڑ پر ہے، وہاں ہم 9 دنوں لوگ برابر جاتے ہیں۔ آخری سوال سدھا صاحب، کوئی خاص سندیش جو آپ یہاں سے دینا چاہیں گے؟ آج جو یہاں پر ماحول ہے، آج جو ہندو مسلم سکھ برادری ہے، یہی قائم رہنی چاہیے سدا۔ مسلمان سکھ
हिंदू आपस में एक दूसरे के शादियों में जाते थे, बराबर शरीक होते थे। हर एक फेस्टिवल, चाहे ईद होती थी या शिवरात्रि या कोई भी फंक्शन होता, हम एक दूसरे के घरों में जाते थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर सारे कश्मीर अमन अमान रहे, और खासकर में जो मतन में जो बरादरी है, ये हमेशा सदा सदा कायम रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महानवमी के मौके पर थलवाल जम्मू में जेर तामीर देवी भद्रकाली के मंदिर में हाजिरी दी। ये मंदिर माता भद्रकाली अस्थापन ट्रस्ट तामीर कर रहा है, जो हंदवाड़ा में वाक़या कदीम मंदिर का सानी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मज़कूरा ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात तामीर कर रहा है, जिनमें समाजी व सकाफती सेंटर और शहीद सिद्धू भी शामिल है, जो कश्मीरी पंडितों के शोहदा, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के शहीद हुए जवानों के एजाज में तामीर किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जारी कामों की तकमील को बहुत जल्द यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया कश्मीरी पंडितों की वादी में मुस्तकिल बहाली के लिए तनदही से काम कर रही है, ताकि एक खुशगवार माहौल तैयार किया जा सके। कश्मीरी पंडित वफूद के साथ अपनी साबिका बातचीत को दोहराते हुए एलजी ने कहा कि सरकार तमाम ज़रूरी इंतजामात कर रही है, ताकि सरकारी मुलाजमीन को कम कीमत पर ज़मीन फराहम की जा सके, ताकि वो अपने मकान तामीर कर सकें। उन्होंने कहा कि एलजी के सेक्रेटेरिएट में एक नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है, ताकि कश्मीरी पंडित बरादरी के तमाम मामलात को हल किया जा सके। एलजी ने कश्मीरी पंडितों की फलाह बहबूद के लिए इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात को उजागर किया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के भावे वाली माता मंदिर में भी हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन व तरक्की के लिए दुआ की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महानवमी और दशहरा के त्योहारों के मौके पर हिंदू बरादरी, खासकर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि तमाम मज़ाहिब इंसानी भाईचारे का दर्स देते हैं और आपसी मोहब्बत को मुस्तहकम बनाने की राहें दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित बरादरी की अदम मौजूदगी में वादी कश्मीर उदास है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हमारे समाज को अपनी देरीना रिवायात फिर से बहाल करने का मौका मिलेगा। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से निकाले जा रहे भारतीयों की छठी परवाज कल रात नई दिल्ली पहुंची। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि फ्लाइट में 2 नेपाली शहरियों समेत 143 मुसाफिर सवार थे। दरअसल भारत ने गजा की पट्टी में तनाज़ात के शिकार फलस्तीनियों के लिए इंसानियत के नाते इमदाद भेजी है। ये इमदादी सामान भारत के सफीर अजीत वी गुप्ता ने मिस्र और गाजा के दरमियान रफा के सरहदी रास्ते से फलस्तीन को आगे की तरसील के लिए हिलाल अहमर के हवाले किया। इमदादी सामान में जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात, जराही का सामान, खेमे, स्लीपिंग बैग, त्रिपाल, सैनिटरी सामान और पानी साफ करने की गोलियां शामिल हैं। दरअसल काहिरा में गजा की जंग पर तबादले ख्याल के लिए मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग इसराइल के ज़मीनी हमलों को रोकने के मामलों पर किसी तरह के इत्तेफाक राय के बगैर ही ख़त्म हो गई है। कोई मुश्तरका बयान भी जारी नहीं किया गया, क्योंकि अरब और मगरबी मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका। मिस्र के एक मुबस्सिर के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी समेत कई मुल्कों ने उस शिक को कबूल करने से इनकार कर दिया जिसमें गाजा की पट्टी में जंग बंदी के लिए कहा गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात के लिए CMA यानी कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स में दाखिले के लिए फीस में लड़कों के लिए 75% और तालिबात के लिए 100% छूट देने का ऐलान किया है। इस कोर्स के लिए 12वीं जमात पास या 12वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा अहल हैं। ख्वाहिशमंद तलबा 31 अक्टूबर तक फ़ोन नंबर 7051750147 पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुने, 7051750147, जिसके बाद वो तहरीरी इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं, जिसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
कश्तवाड़ जिले में कल 3.5 शिद्दत का जलजला आया, जिसका मरकज 5 किलोमीटर की गहराई में था। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इससे पहले कल ही नेपाल में 4.3 शिद्दत का जलजला आया था। नेपाल में 24 घंटे से भी कम की मुद्दत में दूसरी बार जलजले के झटके महसूस किए गए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी आज सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे। उनका खैर मकदम करते हुए वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्विटर पर लिखा है कि उनका दौरा मुख्तलिफ शोबों में भारत IAEA ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। IAEA जौहरी शोबे में ताउन का मरकज है और ये टेक्नोलॉजी के महफूज और पुरअमन इस्तेमाल को फरोग देने की कोशिश करता है। भारत 1957 से इस एजेंसी का बानी रुकन रहा है और उसने अपने आगाज से ही IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में खिदमात अंजाम दी हैं। दीगर अरकान में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत की सदारत में G20 लोगों की तवक्कात से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुआ है। नई दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 की शजरकारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए एक्शन प्लान, ग्रीन डेवलपमेंट पैकेट, खवातीन की क़यादत में तरक्की का पैगाम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट G20 के अहम इक़दामात हैं। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता माह नई दिल्ली में मुनक़द हुई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि G20 ने आज के सबसे ज़्यादा अहम मसाइल पर अहम पेशरफ्त की। भारत ने बाली सरबराही इजलास के बाद गुज़श्ता साल दिसंबर में G20 की सदारत संभाली थी और नवंबर के आखिर तक ये ओहदा अपने पास बरकरार रखेगा। क्रिकेट के आलमी कप के सिलसिले में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए। आखिरी इतला आने तक अफगानिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए थे। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत की सदारत में G20 लोगों की तवक्कात से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुई है। नई दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 की शजरकारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए एक्शन प्लान, ग्रीन डेवलपमेंट पैकेट, खवातीन की क़यादत में तरक्की का पैगाम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट G20 के अहम इक़दामात हैं। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता माह नई दिल्ली में मुनक़द हुई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि G20 ने आज के सबसे ज़्यादा अहम मसाइल पर अहम पेशरफ्त की। भारत ने बाली सरबराही इजलास के बाद गुज़श्ता साल दिसंबर में G20 की सदारत संभाली थी और नवंबर के आखिर तक ये अपने पास बरकरार रखेगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई इलाकों में 2-1 जगहों पर हल्की सी बूंदाबांदी या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत श्रीनगर में 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत जम्मू में 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत लेह में -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर पेश खिदमत है। सरकार किसानों को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ इमदादी बाहिमी के सेक्टर को मुस्तहकम करने के लिए कोशां, मरकजी वजीर अमित शाह। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महानवमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कश्मीरी पंडितों की वादी में मुस्तकिल बहाली के लिए तनदही और लगन से कर रही है काम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।
اور آپریشن اجے کے تحت اسرائیل سے بھارتی باشندوں کو لے کر چھٹی پرواز پہنچی نئی دلی۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔